आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? पहले तो आई एम वेरी लकी, फैमिली जेनेटिकली कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छी है, बट लाइक दिस है ना, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी भी हो, अगर आप मेंटेन नहीं करो तो ख़राब कर सकते हो. कभी भी पिंपल्स का प्रॉब्लम ऐसे कुछ रहा नहीं है? आया है, ऑफ कोर्स हार्मोनल प्रॉब्लम, एज रिलेटेड ओके। प्रॉब्लम्स, टीन एज में ये वो ऑफ कोर्स आ जाता है. इनफैक्ट कहो ना प्यार है कि जब शूटिंग कर रही थी मैं और हम टाइटल ट्रैक कर रहे थे ऑन द बीचेस, you know the कोर मेमोरी। oh my god, I got such an allergy from the sun, from the sea, the salt and the sand कि मेरा फेस भर गया था. I went completely clean faced and I came back completely like I had measles. और मैं खुद अपने आप को आईने में देख नहीं पा रही थी. But then of course I got it cleared and I went to doctors and dermatologists. दवाइयाँ ली, क्रीम लगाए, फेशियल किए, निकाल दिए. But yeah, my skincare routine basically is good skincare at night, a good regime, serum, moisturizer. Never sleep without any makeup. नो मैटर जितनी भी मैं मर रही हूँ, गिर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं मेकअप निकाल के नहा धो के ही सोऊंगी. आई एम OCD, so I have that issue. I have to be super clean, surroundings plus myself. Simple routines, but consistency. एक बहुत रैंडम चीज़ कहनी है आपको, ओके, बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, नाउ आई थिंक आई कैन टेल यू. ये मेरी एक कोर मेमोरी है, क्योंकि आपने उस बीच के बारे में बात किया, कहो ना प्यार है कि टाइटल ट्रैक के बीच के बारे में. आई रिमेंबर वॉचिंग द मूवी इन अ थिएटर एंड आई वांटेड टू गो अप एंड हग यू व्हेन आई वाज अ किड. You can do the hug I now mean, and now fulfill your I'll dream. give you a hug after the Sure. shoot. What a nice core memory का होना प्यारा है. Yeah. You know, And now see especially you're the sitting beach. in front of me 25 Yeah. years later. You're wearing a pink skirt, yeah? Yeah, Pink that skirt, white should, shirt. yeah. See, it's like early crush memories. As a 6-year-old. Wow. Yeah. आपका क्रश रहा है कभी किसी एक्टर पे? Tom Cruise. If you can do a podcast with him, It'll please get happen. him to and invite me on that podcast just so I Okay, can be done. the drool factor क्यों standing अच्छे there. लगते टॉम क्रूज? पहले से बचपन से मेरे पेंसिल बॉक्स पे उनकी तस्वीर थी, मेरे फाइल्स पे उनकी तस्वीर थी, मैं सब स्टेशनरी उनके. द ओनली पोस्टर आई रियली मेरे रूम पे जो मैंने लगाई हुई थी सिर्फ और सिर्फ टॉम क्रूज़ की थी. ही इज़ माई इटर्नल क्रश. लाइक द ओनली पर्सन, मैं हमेशा जोक करती हूँ, the only man I'd let go of all my morals and values and literally everything for would be him. Like, you ask me, would I have a one night stand with him? Yes, I would. आई फील कि एक पूरी जनरेशन ने ना टॉम क्रूज मैजिक एक्सपीरियंस नहीं किया. नहीं किए. बट हमने इतने सारे 70s बॉर्न स्टार्स की बातें करी आज के पॉडकास्ट में, बीट अक्षय खन्ना, ऋतिक रोशन, योरसेल्फ, बॉबी देओल. These were people who dominated my childhood, like especially early 2000s वगैरह. Is it too generalized if I ask you what zone everyone is in? Yeah, because I think everyone has digressed into their own Definition of life. definition of life. Like, if you see Bobby, the kind of roles he's doing, or you see Akshay, who comes, does a one off, completely out of the box character, which you'd never imagine him, like for recently, even Shava or in Drishyam. He'll do something completely that you don't picture him in, which you actually feel कि अक्षय खन्ना की बस की बात नहीं है. It's not meant for him. And he'll, like, I was terrorized seeing him. It means he was very successful in what he did, right? He managed to scare me in that role. And I know him as a sweet boy, the amazing boy. And even in Hamraz, मुझे कभी नहीं लगा था he'd be a successful villain. So I think ये इंडस्ट्री भी हम लोग को इतनी टाइपकास्ट कर देती है कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं. मज़ा तब आता है जब आप एक्टर को चैलेंज करो, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो. वो हिम्मत डायरेक्टर प्रोड्यूसर में होनी चाहिए कि विजुलाइज करो कि एक्टर अपने कंफर्ट जोन से निकल पाएगा या पाएगी, एंड गिव देम समथिंग टोटली आउट ऑफ द बॉक्स एंड दैट विल सरप्राइज द ऑडियंस एंड द एक्टर, देन द टेक्नीशियंस देमसेल्व्स. आई थिंक अक्षय डज दैट. बॉबी सरप्राइज्ड अस इन एनिमल, which brings me back to one very important कि ड्यूरेशन ऑफ रोल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट. एंड हॉलीवुड हमेशा से ये बिलीव करता रहा है. एक्टर्स दे अफ्रेड नहीं है कम, हम 10-15 मिनट के रोल में भी आते हैं और ऑस्कर जीत जाते हैं. ये हमारी इंडस्ट्री में कि नहीं, हम लोग को पोस्टर बॉय ही बनना है, हम लोग को सब गाने, सब एक्शन, सब ये करना है. बॉबी को देख लो, एनिमल में 20 मिनट के लिए थे, एक ग्लास रख दिया सर पे, कन्विंस्ड दैट ही कुड डू इट. गूंगा वो भी इन अ 20-minute रोल, एंड he stole the show as much as Ranbir. They were both spectacular together. Like, you can't think of Animal without thinking of Ranbir and Bobby equally.
सो आई थिंक एवरीवन इज ऑल्सो रेडी टू एक्सपेरिमेंट अभी. पहले क्या था, हम लोग को बहुत टाइप कास्ट किया जाता था कि हीरो का ये है, हीरोइन का ये जगह है, देन यू हैव अ कॉमेडियन, फिर विलन. अभी जॉन भी पठान में इज कमिंग एज अ विलन. You know, like I said, lines have gotten very diminished, very merged, and they're not clear cut now. And I think somewhere Shah Rukh Khan ne ye start kiya with Bazigar. He played an anti-hero. He took that risk at that time when no one would have thought कि कोई ये कर भी सकता है, you know. So I think cinema has changed a lot now. मैं खुद शॉक थी कि मैंने स्त्री 2 देखी थी. Lovely film, did great business, super hit. And Shraddha was the Sri 2 or so-called the title role, and सिर्फ 20 मिनट का रोल था. But she was fantastic in it. So like I'm saying, no, now it doesn't matter कि आजकल आपका 10 मिनट का रोल है, 20 मिनट का रोल है, impact कैसा है. And when a film succeeds, everyone and everything succeeds. Animal hit हुई, स्त्री hit हुई, benefit बॉबी को भी मिला, श्रद्धा को भी मिला. So durations are not as important now as doing that quality in the film. You know, earlier you could be in a film from the beginning to the end and have no impact. So that is also something that you're seeing is very different. Also, you see people that were thought of not to be a hero, ki, you know, how can a Rajkumar Rao or Nawazuddin Siddiqui and all these people headline a film? But they're accepted beautifully. And why not? They're brilliant actors. They're amazing. You know, और उनको commercial cinema मिल रहे हैं. आपकी एक फिल्म मुझे बहुत याद है, कौन सी? जिसकी बातें उतनी नहीं होती बट होनी चाहिए, मंगल पांडे. Oh yes, आमिर खान के साथ. एंड आई फील कि अगर वो फिल्म थोड़े वक्त बाद रिलीज हुई होती, इट वुड हैव बीन रिमेंबर्ड मोर. इट्स अ गुड फिल्म, वेरी गुड फिल्म. एंड मेरे लिए ना 1857 का वो रिवोल्ट मैं मंगल पांडे से ही पिक्चराइज करता हूँ. Very nice historical film. At least that's what I had felt. Yes, it was a brilliant film. And वो उस टाइम हमारे पे प्रेशर इतना था क्योंकि आमिर खान ने एक सबैटिकल लिया था. आमिर वॉज कमिंग बैक ऑन स्क्रीन 4 साल के बाद. वो कैमरा फेस कर रहे थे लगान के बाद, तो बहुत नर्वस भी थे और बहुत मेहनत की थी. एंड मैंने उनसे इतना कुछ सीखा वो फिल्म करते करते. एंड सी वो फिल्म में भी लाइन्स मर्ज थी. देयर वाज नो टिपिकल हीरो हीरोइन, ये वो, वेरी ऑथेंटिक टू द सब्जेक्ट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. और वो फिल्म हम लोग ने हिंदी में भी की थी और इंग्लिश में भी. हम लोग एक शॉट हिंदी में देते थे, एक शॉट इंग्लिश में, बिकॉज फॉरेन स्टार कास्ट ब्रिटेन से बहुत थे. एक ऐसी कहानी थी जो ब्रिटिश राज से सहमत थी, तो हम लोग ने इंग्लिश वर्जन इंग्लैंड में भी रिलीज़ की थी. एंड इट वॉज द फर्स्ट फिल्म दैट वी हैड शॉट सिंक साउंड. कोई डबिंग नहीं था, ऑन द स्पॉट जो भी हम लोग बोल रहे थे वही फिल्म में जा रहा था. So that was a new experience for me also. Fantastic film, yes. You value that film? Oh, a lot. Yeah. I value it because of the film, but most importantly, मैं value करती हूँ क्योंकि जो gentlemanness, जो perfectionist, जो camaraderie मैंने आमिर खान के साथ build की, relationship build किया उस film में, I think that's far bigger than the film's success or failure.